Welcome to the official YouTube channel of Shriram IAS. क्या हुआ? और एक बार बताना मुझे करो. Hello students, welcome to the official YouTube channel of Shriram IAS. So in this series of one day one PYQ, today we have a very important question from GS3 economy section, and the theme is food processing. So this question was asked in 2020. So the question is, what are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? So it's a very direct question about food processing, because food processing जो theme है, this theme is clearly mentioned in the mains syllabus. It is clearly mentioned कि food processing, the word food processing is clearly mentioned. उनका challenges क्या है, उनका opportunities क्या है और कैसे और बेहतर हो सकता है. So the demand is challenges, opportunities, and how income of farmers can be increased through food processing. So this is the demand. But in the intro, we have to create a context. Now to create a context, we should know the topic of this question. The topic is food processing. This is the topic. Okay? This is the demand. So demand, we have to put it in the body of the answer. In the body of the answer, we have to put the demand, that is, what are the challenges, what are the opportunities, and how farmers can, the farmers' income can be done. So how means it is nothing but kind of a way forward question. Okay. But in the intro, we need to create a context. So to create a context, our context can be created from the topic itself, and the topic is food processing. So we'll create a context, and we have to connect with the question. That is, we have to connect with the demand. Then only we can start the body of the answer, so that there is a connectivity, there is a coherence. So we can start like in the intro. We can start by creating a context from the food processing sector. Now food processing sector जो एक link है, it is the link between एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ठीक है. सो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज ए क्रूशियल लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. सो वहां से हम शुरू करेंगे. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ठीक है. और यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू गिव सम डेटा, यू कैन गिव अ डेटा, बट दैट डेटा शुड नॉट बी लाइक, यू कांट यूज इट इन द बॉडी. You can use it in the body, but that data should substantiate your fact in the body. You can put it there also. But if you want to put it here, you can put it through a contextual purpose. So here I can write, it's a crucial link between agriculture and industry, and it contributes around 13%, 13-14%, specific जरूरी नहीं है. So around approximate 13% of the manufacturing GVA. मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो उसको 13% कंट्रीब्यूट करता है, एंड एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ पर्सन्स, एम्प्लॉयमेंट भी देता है. सो आई हैव क्रिएटेड अ कंटेक्स्ट. आई जस्ट स्टार्टेड विथ अ कंटेक्स्ट बाय गिविंग अ डेटा एंड टेलिंग कि यस, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ लिंक बिटवीन two industry, that is agriculture and industry. The sector, now I will try to connect with the question. The sector
has huge opportunities for a country like India, though it comes with its own challenges. Though it comes with its own challenges. So now, the first line is a context creation. The second line is connecting with the question, connecting with the question. So this is the intro. Now we are ready with the answer. Now we have to put what exactly is mentioned, what is the demand, and what to write. Fine. So now we'll come up with the opportunities first, then we'll come with the challenges. So हम उसके बाद challenges को भी mention करेंगे. So when we come up with opportunities, so you can explain one line. I'll explain to you because I wanted to make the video short. So I have mentioned the points, but I'll explain what you can write it in the dimensions, different dimensions. So first of all is abundant raw material base. इंडिया में रॉ मटेरियल बेस बहुत अच्छा है, अबंडेंट है, ठीक है. तो उस रॉ मटेरियल जो हम एग्रीकल्चर में बनाते हैं, ठीक है, सो उस रॉ मटेरियल्स को एज ए फाउंडेशन हम ले सकते हैं फॉर आवर फूड प्रोसेसिंग. सो जो अबंडेंट रॉ मटेरियल, बहुत इतना सारा रॉ मटेरियल हमारा ऑलरेडी है इंडिया में, बनता है, प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर में, क्यों ना उस चीज को एज ए फाउंडेशन लिया जाए, कैन बी टेकन एज ए फाउंडेशन फॉर फूड प्रोसेसिंग. फूड्स बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, दैट कैन बी टेकन एज ए फाउंडेशन, बिकॉज रॉ मटेरियल बन रहा है ना, रॉ मटेरियल को फाउंडेशन लेके और वैल्यू ऐड करो. सो वैल्यू एडिशन बड़ा अच्छा होगा और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो ये एक हो गया. दूसरा ये है, सेकेंड इज ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड. डिमांड भी बढ़ रहा है. अब डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल्स. चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, डिमांड भी बढ़ रहा है. प्रोसेस्ड फूड का भी डिमांड बढ़ रहा है अभी. सो दैट यू कैन डिमांड ऑफ प्रोसेस्ड फूड नॉट इवन इन डोमेस्टिक बट ग्लोबल ऑल्सो. एक्सपोर्ट के लिए एक डिमांड है फॉर प्रोसेस्ड फूड्स. ठीक है. सो वो भी एक रीजन है. और सबसे बड़ी चीज, अपॉर्चुनिटी क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, बहुत पोटेंशियल है. जब आप रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेस करोगे तो वहां पे भी काम चाहिए, वहां पे भी लोग चाहिए, ठीक है. बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज हो सकता है, वुमेन के लिए हो सकता है खास करके, बिकॉज इट नीड्स वर्क, इट नीड्स पीपल प्रोसेसिंग के लिए. प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यहां पे हम फोर्टिफाइड, एग्जाम्पल हम फोर्टिफाइड फूड्स की बात कर सकते हैं. फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, बहुत सारे आप फोर्टिफाइड गुड्स की फूड्स की बात कर सकते हो. फोर्टिफाइड राइस, मतलब राइस बनने के बाद यू हैव टू ऐड सम न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोसेसिंग से ही होता है. फाइन, वो आप लिख सकते हो फोर्टिफाइड राइस. बिकॉज फोर्टिफिकेशन इज डन, ओनली फोर्टिफिकेशन की बात करूं मैं, बायो फोर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोर्टिफिकेशन की बात करूं. बिकॉज बायो फोर्टिफिकेशन हार्वेस्ट से पहले होता है, तो वहां पे वो नहीं लिखना है. हम प्योरली प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बायो फोर्टिफिकेशन में बायो टेक्नोलॉजी यूज होता है, दैट टू बिफोर हार्वेस्ट होता है.
ठीक है, क्रॉप के टाइम पे, बनने के टाइम पे। यहां पे लेकिन क्रॉप बनने के बाद होता है, प्रोसेसिंग से ही होता है। सो एक न्यूट्री और जो फोर्टिफाइड फूड्स होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देगा, तो वो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी डायमेंशन हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि वो बहुत जो पेरिशेबल फ्रूट्स है, ठीक है, 15 से 20% लॉस हो जाते हैं, पेरिशेबल। तो अगर हम वहां पे पास में प्रोसेसिंग यूनिट्स रखेंगे, सो प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या करेगा कि पेरिशेबल गुड्स को वो कन्वर्ट कर देगा ड्यूरेबल। दैट यू कैन राइट। रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होगा कि बड़ा सारा लॉस होता है, 15 से 20% फ्रूट्स लॉस बिकॉज ऑफ इट्स पेरिशेबल नेचर, वो लॉस हो जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सपोर्ट में कुछ स्कीम्स का नाम लिख देना। संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, मेगा फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स। सो सरकार का कोई एक दो स्कीम यहां पे हमने लिख दिया कि वो भी गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिलेगा अच्छे से और तो इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा। तो ये सब सारे के सारे दीज आर अपॉर्चुनिटीज, दीज आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। नाउ व्हेन वी हैव डन विद द अपॉर्चुनिटीज विल कम टू द चैलेंजेस। नाउ चैलेंजेस बहुत है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड है, कोल्ड स्टोरेज हमारा लिमिटेड है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स है, जमीन है, वो भी फ्रैगमेंटेड है फार्मर का, जिसके वजह से रॉ मटेरियल का सप्लाई भी हिंडर हो जाता है। लिमिट्स सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। बैंकिंग का एग्जांपल एक साथ ही मैंने लिख दिया है यहां पे, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट, बिकॉज प्रोसेसिंग में यू नीड गुड टेक्नोलॉजी, वो भी हम कहीं ना कहीं पीछे उसमें है। क्रेडिट का टेक्नोलॉजी भी नहीं, क्रेडिट का भी कॉन्स्टेंट्स है, पैसा नहीं है। खास करके जो एमएसएमईज है, दे फेस द मनी क्रंच। फाइन, ये भी एक चैलेंज है। फोर्थ पॉइंट, क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज, मतलब वी आर नॉट एबल टू मैच अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी है, बिकॉज जब आप एक्सपोर्ट करोगे, आप मैन्युफैक्चर करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद जब एक्सपोर्ट करोगे, सो यू हैव टू कंप्लाई विथ सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी, तो उसमें भी थोड़ा हम वीक हैं। क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इश्यूज भी हैं। प्रोसेसिंग बहुत लो लेवल है हमारा इंडिया में, प्रोसेसिंग बहुत लो लेवल के, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे है, ठीक है। तो वो भी एक, उसका लेवल बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। Now, when you're done with the challenges, opportunities, then again we have to come. How can the income of the farmers be substantially increased? Because इस क्वेश्चन में तीन ऐसे क्वेश्चन है जो कि जोड़ के हैं। There are three different things: challenges, opportunities, processing. उसके साथ फिर intro, फिर उसके बाद conclusion भी लिखना है। Fine. So how food processing can substantially increase farmers' income? पहले तो value addition होगा। अब जो value addition होगा, बिकॉज प्रोसेसिंग में वैल्यू ऐड होता है, सो ये दो पॉइंट को आप एक साथ भी लिख सकते हो। जो वैल्यू एडिशन होगा तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा, फार्मर को बेटर प्राइस भी मिलेगा, जो अच्छी बात है। वैल्यू एडेड होगा तो बेटर प्राइस भी तो मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे आप लिख सकते हो कि फार्मर खुद प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स में इन्वॉल्व होके काम कर सकता है, फिर उसका इनकम भी बढ़ेगा। सो दिस टू पॉइंट्स को आप क्लब करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहां पे। फाइन। डाइवर्सिफिकेशन होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो कहीं ना कहीं बिकॉज
हम जैसे कि वी आर ए मानसून डिपेंडेंट कंट्री एंड हमारा सरकार भी चाहती है कि डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर हो, तो वो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओवरऑल रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उस एरिया, जब आप फार्मिंग भी कर रहे हो प्लस वहां पे भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, तो ओवरऑल उस एरिया बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वहां पे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इट विल इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग के बाद ही तो एक्सपोर्ट होगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में है, स्पाइसेस हो गया, बहुत डिमांड में है बाहर, और एक्सपोर्ट का प्राइस ज्यादा रहता है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज मोर, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर, तो वो बेटर प्राइस अगेन देगा फार्मर्स को। इफ यू आर फुल्ली फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, इट विल गिव यू फेच यू मोर मनी। और एक डायमेंशन है बाय प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन। जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू होता है उसको हम बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू देगा, अगेन गिव एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा इनकम। तो एक बायोफ्यूल का डायमेंशन भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, फाइनली वी विल कम टू द कंक्लूजन। फाइनली वी विल कम टू द conclusion where we will summarize everything, but it will be it looks better when you give a thoughtful thing, because see, these are all factual things, these are all factual, data specific, your knowledge, because this is not your perspective, this is happening or this is reality, okay। so इस चीज को हम रिपीट नहीं कर सकते कंक्लूजन में। कंक्लूजन में when you put a ending note, it will be better when you write फ्रॉम ए वेरी थॉटफुल पर्सपेक्टिव, मतलब एक बहुत ही, जो आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, एक थॉट के हिसाब से अगर आप वहाँ पे पेश करोगे तो वो थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है। बिकॉज बाकी सब ने हमने बोल दिया है, हमने यहाँ पे पॉलिसी ओरिएंटेड बोला है, सरकार के तरफ से क्या हो सकता है, चैलेंजेस हमने बात किया और किस तरीके से हो सकता है, अलग अलग एक ओवरऑल रूरल के बारे में बात किया, हम प्राइस के बारे में बात किया, फार्मर इन्वॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर बात किया हमने, बाय प्रोडक्ट जो बायोफ्यूल के साथ भी, बायोफ्यूल हो गया, इथानॉल हो गया, एक्सेट्रा, उसमें भी बात किया। सो हमने कहीं ना कहीं फैक्चुअल दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय अस, दिस इज नॉट माय थॉट, दिस इज द रियलिटी, और काइंड ऑफ इट कैन बी डन इन फ्यूचर, बट इन कंक्लूजन it always looks good when you give a thoughtful thing or thoughtful perspective. So thoughtful perspective means something which is there in your thought and you are putting it out from your soul. So we can and it is very individualistic in nature. See, thoughtful, my thought is my thought, your thought is your thought, but it is better if you put your thought. ठीक है, मतलब आपका सोच, बेसिकली आपका सोच जो है. So either you can write the food processing sector is the link between farm to fork, is the link between farm to fork and agriculture to entrepreneur. समथिंग माई थॉट, मतलब ये एक लिंक है फार्म टू फोर्क, मतलब फार्म टू फोर्क मतलब खाना, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एंटरप्रेन्योर. जब आप एग्रीकल्चर, अभी आप एग्रीकल्चर तक सीमित हो, आप जाके फूड प्रोसेसिंग भी करो फार्मर को, मतलब कहने का मतलब है कि इन्वॉल्व इन दैट फूड प्रोसेसिंग, फार्मिंग के साथ साथ आप थोड़ा ऊपर के लेवल को भी जाओ. सो उसका एक लिंक है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. तो वहां पे मैं कनेक्ट करूंगा द गोल
is merely not to produce more but to avoid wastage and make farming and allied activities a very sustainable one. A very sustainable one. मतलब मैं यहाँ पे मेरा एक सोच, मेरा एक विचार दे रहा हूँ कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक लिंक है फार्म टू फोर्क और एग्रीकल्चर टू एंटरप्रेन्योर के बीच में, एंड गोल ये नहीं है कि हम बस प्रोडक्शन पे ध्यान दें, प्रोडक्शन के साथ साथ हम ऐसा होना चाहिए कि टू अवॉइड वेस्टेज और फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज को हम एक सस्टेनेबल वन करें. सिंपल, इफेक्टिव एंड काइंड ऑफ ए थॉट मैं एक दे रहा हूं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस सीरीज विल बी कंटिन्यूड in our next session. Thank you.